Hello, dear students. So, I welcome you all to today's class. We have completed the third chapter, history, the Delhi Sultans. Today, we will be discussing the question and answers. And I know you all are smart enough to complete the question answers on time and then send it on my mail. Smart children, you people, you all are. So, kindly do this. So, let's start with the discussion of question answers. Question tells us which ruler first established his or her capital at Delhi. Children, ये आंसर इसमें देख के लिखने वाली कोई बात नहीं है, because this answer you can easily find it out in the table that is given there. Remember? Yes. The table that is given there, all these answers are very clearly, matlab this name is available there also. Next question, children. Question number 2. What was the language of administration under the Delhi Sultans? So, Persian was the language. This is there in the first page only. First page में जहाँ पे सुल्तान्स के बारे में जानकारी है, that answer is there. In whose reign, मतलब किसके रूल में सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा दूर तक, मतलब दिल्ली से साउथ एंड एज फार एज द मिडल ईस्ट, वो उतनी दूर तक, हु वेर द पीपल हु हैव रीच्ड, किन रूलर्स ने बहुत दूर दूर तक रूल किया? तो इट वॉज डेफिनेटली बिकॉज रिमेंबर, जब हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं, Sultanate had reached its farthest extent during Muhammad Tughlaq, because Muhammad Tughlaq was the person who was trying to attack Transoxiana. आप देखना ये दिया हुआ है, because he was the one who had thought of, पहली बार किसी ने गेंगीज खान को हराने का सोचा है. He said he was a very brave person. He said कि continuously Genghis Khan is coming and attacking us. So इसके पहले कि वो आके हमको अटैक करे, हमको जाके उनके ही किंगडम पे अटैक कर देना चाहिए. Got it? So you can understand that how fearless Muhammad Tughlaq was. किसी से भी इनको डर नहीं लगता था. अब Ibn Battuta from when did, which country he had come from? So it is very clearly mentioned, जहाँ इब्न बटूटा का बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे it is mentioned that he had come from Morocco. Now just check this answer number 5. It is saying a सर्कल ऑफ जस्टिस, ये जो जस्टिस का सर्कल है, मीन्स द एम्परर्स, द सुल्तान्स, दे हैव थॉट अबाउट गिविंग जस्टिस टू द पीपल हु आर स्टेइंग इन देयर एम्पायर. उनके एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी ऑलवेज प्रॉपर केयर टू बी टेकन फॉर दीज एम्परर्स, by these emperors, for the common people. तो उसके हिसाब से military commanders should take interest of the peasants in the mind. गरीब लोगों को सताना नहीं है, because military commander हैं तो obviously they might be very powerful, so they should not take advantage of the poor people. And king has to understand that if he is a king, it is because of his soldiers, and the soldiers cannot live without salaries. And salaries कहाँ से आती हैं? It comes from the revenue collected from peasants. Got it? So peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. तो इसलिए it is the circle of justice. जैसे एम्परर इज हियर, ठीक है, ही इज लुकिंग आफ्टर द आर्मी, आर्मी इज लुकिंग आफ्टर द पीजेंट्स,
फार्मर्स मतलब अत्याचार नहीं, पीजेंट्स देन टेक केयर ऑफ द एम्परर। सर्कल है पूरा। इसमें से अगर कोई भी अगर बहुत दुखी होगा या नाराज हो जाएगा, देन दिस सर्कल विल ब्रेक and we have to see that the circle of justice is maintained. Now check out this next question. What is meant by internal and external frontiers of the Sultanate? Internal frontiers and external frontiers, one of the students was asking me this question. इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर का जितना भी मामला है, इंडिया के अंदर का जो भी काम है, that would be done internally, that is internal frontier. And internal frontiers में क्या क्या आता है? What all things are included in the internal frontiers? Hinterlands of the garrison towns and Ganga Jamna Doab. External frontiers में क्या आता है? It includes the unconquered area of southern India which is away from Delhi. दिल्ली से दूर है, वेरी फार ऑफ। आसपास के मतलब इंटरनल अंदरूनी तरीके से दे आर कॉन्करिंग हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन, जहाँ पे आर्मी इज स्टेशन, जिस जगह पे आर्मी है उसके आसपास की जगह पे जो एम्परर्स ने दे हैव टेकन ऑल दैट लैंड अंडर देयर कमांड, दैट इज कॉल्ड एज द हिंटरलैंड फ्रंटियर्स। एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में क्या हुआ कि रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड, ये था यहाँ पे दिल्ली था, एंड ऑल दीज लाइन्स वेयर मेड दैट दे केम टू केरला, इधर उड़ीसा, बिहार, हर जगह जा रहे थे कॉन्कर करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। पहले तो आसपास के एरिया को कैप्चर किया, इंटरनल, एंड देन स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सटर्नल। What were the steps taken to ensure that Muktis performed duties, and why do you think they may have wanted to defy the orders of the Sultan? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि मुक्तीज were also, देखो पहले तो you are always confused, मुक्तीज were the इक्तादार्स, इक्तादार्स को ही हम मुक्तीस कहते हैं। ओके, वो क्या काम कर रहे थे, एंड वाई डिड अ टाइम कम व्हेन, जबकि वो सुल्तान के ऑर्डर्स को नहीं मान, दे वर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दे हैव देमसेल्व्स बिकम सो पावरफुल दैट दे वर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। तो मुक्तीज की क्या ड्यूटी थी? दे हैव टू लीड द मिलिट्री कैंपेन्स, दे हैव टू ऑल्सो मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ओके, इन देयर इक्ताज मीन्स इक्तादार्स, दे हैव गॉट द इक्ताज, उनको लैंड दिया जाता था, एम्परर देते थे। देयर ऑफिस वॉज मेड नॉट इनहेरिटेबल, मतलब अगर वो इफ एनी इक्तादार और इफ एनी मुक्ति हैज डाइड तो वो उनके बेटे को पास ऑन नहीं होगा, इट विल अगेन गो बैक टू द किंग। हो सकता है द किंग कैन मेक समबडी एल्स एज इक्तादार। तो इससे द मुक्तीज और द इक्तादार्स दे वर ऑलवेज वेरी स्कैर्ड कि जिस एम्पायर पे, जिस जगह को इतना अपने खून पसीने से इतना हमने बड़ा किया, वी हैव लुकिंग आफ्टर द पीजेंट्स, और हमारे हाथ से वो चला ना जाए। इक्ताज इनको दिया जाता था फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटेंट्स जो है वो स्टेट वॉज सेंडिंग, कहीं पैसे की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। So the emperor used to send the accountants and the amount of revenue collected, और सारी चीज़ें, everything, हर एक चीज़ का हिसाब किताब मेंटेन किया जाता था। All the amount of revenue that was collected, it was maintained as record. ठीक है, मुक्तीज the taxes that they were collecting, जितना भी पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं, accordingly they have to keep the required number of soldiers. आर्मी हमेशा तैयार होनी चाहिए। Remember Genghis Khan, he was continuously attacking Delhi. तो if army is not ready and army को अगर मतलब ठीक से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, and the army is not taken care of, तो time will come when the
I'm sorry, invaders will come and capture the city. शहर पे वो कब्जा कर लेंगे, दिल्ली उनके हाथ से चला जाएगा, इसके लिए आर्मी को मेंटेन करना था. सो मुक्तिज वेयर आस्क्ड, लेकिन दे डिफाई मतलब डिसोबे करना. डिफाई मीन्स टू डिसोबे. दे डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान बिकॉज दे वेर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज. इनकी अपनी आर्मी होती थी, रेवेन्यू भी यही कलेक्ट करते थे. तो वॉट हैपेंड कि दे यूज टू रिबेल अगेंस्ट द किंगडम. जिस राजा ने उनको मुक्ति बनाया, जिस राजा ने उनको इक्तादार बनाया, ठीक है, दे यूज टू गो अगेंस्ट दैट किंग ओनली. एंड हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वॉज ऑल्सो देयर. बहुत टफ जॉब था. दे हैव टू डू लॉट ऑफ activities for the king and they have to maintain lot of discipline in the kingdom. इतना शायद वो अकेले नहीं कर पा रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता था. they used to separate themselves from the ruler. Got it? Okay, this is an important question, children. What was the impact of Mongol invasion? Mongols were continuously coming. So remember हमने एक जगह पढ़ा था, on one side there was Alauddin Khalji and then on the other side there was Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq. तो वहाँ से you can take these points. The rulers of Delhi Sultanate, what did they do? They raised a large standing army. सबसे पहले अलाउद्दीन तो हैज़ मेड अ गैरिसन टाउन. रिमेंबर हमने पढ़ा था सीरी फॉर हिज सोल्जर्स. लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? दैट ही एम्प्टीड द रेसिडेंट्स. वहाँ जो रह रहे थे, द पीपल हु वर स्टेइंग इन द सीरी एरिया, दैट वॉज मेड प्लेस अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स. आर्मी को वहाँ पे लगा दिया इन्होंने. एंड इतने सारे आर्मी के लोगों का देखभाल करने के लिए, टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, harsh taxes were imposed on peasants. इनका खाने पीने का खर्चा कहाँ से आएगा? The army people, the army that was stationed, the army that was preserving or saving the emperor from the Mongol invasion, from where will the food come? So lot of taxes was collected and they started paying soldiers को. अब क्या हुआ ना, पहले इक्तास दे दिया जाता था, अभी क्या था, कैश. तो ये जो सारी चीज़ें थी, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस मंगोल इन्वेजन, it became a very challengeful condition in the administration. हाँ, अभी nice question is there. Do you think the authors of Tawarik would provide information about lives of ordinary men and women? Ordinary आम आदमी के लाइफ के ऊपर ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते होंगे, क्योंकि ये तो एम्परर के लिए लिखते थे ना. एम्परर हैज अपॉइंटेड देम एज द पीपल टू राइट हिस्ट्री. सो वॉट एवर दे विल बी राइटिंग, इट वुड बी फॉर द एम्परर. आम आदमी की बातें वो क्यों लिखेंगे? उनको आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं था. तो they did not provide much information about the ordinary men and women. ठीक है, just see the same thing is mentioned here, that the authors of Tawarik, I don't think वो information क्यों देंगे? Why will they give the information about the lives of ordinary men and women? Because their writing was for praising the sultan and get reward. एम्परर जो है उसकी सेवा करनी है और उससे बहुत सारे रिवार्ड्स लेने हैं. दे हैड नथिंग टू डू विथ कॉमन फोक्स. आम आदमी के नहीं करना था. ओके, सो एंड they were also the part of administration, lived in the towns, and गांव में जो लोग रह रहे हैं, द पीपल हु आर स्टेइंग इन द विलेजेस, एंड व्हाट इज देयर लाइफ लाइक, एंड उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दिस कुड नॉट बी मेड आउट प्रॉपरली. इसको पता लगा पाना बहुत मुश्किल था.
ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज मैंशनड हियर एंड वे आर मोस्टली अनअवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल. गॉट इट. तो तवारीख जो लिख रहे हैं, हिस्ट्री जो लिख रहे हैं, उनको आम आदमी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी. Another thing that was there, Razia Sultan was unique in history of the Delhi Sultanate. Remember हमने women rulers के बारे में बात किया. Do you think women leaders were accepted? मतलब पहले के ज़माने में तो women leaders को these people were not ready to accept ना. पहले के ज़माने में the male members always used to think that women and their work is just to look after the household. क्या आज changes है? तो Razia Sultan's case is very different because she was the first woman to become the ruler of the Sultanate. Okay, and she was a very able and qualified. देन ऑल हर ब्रदर्स, बाकी के इनके भाई जो थे ना, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे. शी वॉज द वन हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर फादर एंड शी वॉज द वन हु हैड मेड लॉट ऑफ चेंजेस. तो विमेन लीडर्स आज टुडे यू कैन सी सम ऑफ द ग्रेट विमेन लीडर्स आर देयर. यू कैन सी सुषमा स्वराज, शी इज़ नो मोर नाउ. देयर आर अदर मेनी, स्मृति ईरानी इज देयर, मेनी लीडर्स आर देयर who are accepted by the common people and the administration also. गवर्नमेंट ने ही उनको अपॉइंट किया है ना. तो आज विमेन कंडीशन जो है वो काफ़ी बदली जा चुकी है एंड विमेन एज देयर लीडर्स, पीपल आर एक्सेप्टिंग विमेन एज देयर लीडर्स. कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता है. पीपल आर वेरी हैप्पी विद द विमेन लीडर्स. सो वी हैव फाउंड लॉट ऑफ चेंजेस. Many women have proved that women can also be top of leaders. Leaders में एकदम top पे women हो सकती हैं. Moreover, people widely supported that women as their leaders. आज की डेट में, आज के सिनेरियो में, you can give your own views also बेटा. Next question देखो, I think this is the last question. Yes. Why were the Delhi Sultans interested in cutting down forests? And does deforestation add to the occur for same reasons today? क्या किया था दिल्ली सुल्तान्स ने? Remember they have cut the forest in a very brutal manner. क्यों? क्योंकि उनको अपनी आर्मी को बसाना था. आर्मी हैज़ टू बी स्टेशन, उनके लिए नए घर कंस्ट्रक्ट करने हैं एंड प्रॉपर अरेंजमेंट्स नीड्स टू बी मेड फॉर द आर्मी. एस्टैब्लिशिंग बिग सिटीज़. फॉर दैट पर्पज़ द फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड वेरी रूथलेसली. बहुत बुरी तरह से फॉरेस्ट एरियाज़ को जो है काट के बनाया गया. एंड इट इज़ मैंशन्ड, आप देख सकते हो, दैट न्यू fortresses and towns were coming up. किले बनाते थे ना, fortresses किला, and towns were established to protect trade routes. मतलब the people who were going to the other countries for trading and to promote regional trade, all these were established. They also cleared forest in order to safeguard their frontiers and quick movement in their army. Army jaldi because moving from the forest area, it took lot of time to the army. So now they have made up their mind कि army should move smoothly. For that purpose they have cleared the forests. And deforestation तभी होता है when there is construction of roads, railways, houses, industries. Got it? So in today's time deforestation is happening because of roads, railways, houses and industries. सेम रीज़न, मतलब पहले जिन चीज़ों के लिए फॉरेस्ट काटे जाते थे, आज भी द रीज़न रिमेन्स द सेम. सो डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग फॉर सेम रीजन्स टुडे. ओनली खाली ये है द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज़ हैव बीन चेंज. थोड़ा सा खाली एक सोच में हल्का सा बदलाव आया है. गॉट इट? सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रन.
Now, as per our discussion, I will be giving you a brief overview of your political science third chapter. 2 chapters we have already done it. Let's start the third chapter. पूरा complete नहीं भी हो पाएगा. You will be able. So children, we are starting this chapter, a very interesting chapter. You will understand it in a very simple manner. इसको आप आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. We have to understand that how does the state government work. And you are staying in which state, my dear children? Yes, it is Uttar Pradesh. So UP में आप just keep it in mind that the state that you are staying in, how is that state working. यहाँ पे one introduction is given here, children. You can see that you have studied about the local government, state government and national government last year. Okay. And local government, how does it work? We have done it in last year. Yes, children, you remember? Yes, you might be remembering. I am talking about the Panchayati Raj. ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज के बारे में बात किया था. अभी हम देखेंगे हाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट. आई होप यू ऑल लाइक द कॉमिक बुक्स. यस, तो आपको कॉमिक बुक पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना, इजंट इट? तो सेम वे हियर ऑल्सो वन कॉमिक स्टोरी इज गिवन हियर. वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कॉमिक स्टोरी. टू स्टूडेंट्स, ये देखो, पहले तो आप ये समझो कि विच प्लेस इज दिस, कौन सी जगह है ये. यस चिल्ड्रन, दिस इज लाइब्रेरी एंड दीज टू गर्ल्स आर टॉकिंग. Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. पानी कम है, लोग बीमार पड़ रहे हैं. अभी remember यहाँ पे one thing that is coming to my mind, I wanted to share it with you children, that is the second chapter. Second chapter we have seen that what is the role of government for the health. Health issues are very important. I discussed it in the last chapter also, children, that today the whole world is facing a health challenge because of the coronavirus, and how well and how efficiently everybody is meeting it. What is the role of the state government and the central government? Yes children, we are seeing everybody is performing their duties. ठीक है, पानी कम है तो स्टेट में many people are dying. Now these two girls are saying, in many villages, just check, in many villages what happens, people are found to be drinking unclean water. गंदा पानी, आप प्यासे तो नहीं मरेंगे ना. Nobody can die out of thirst. So people are drinking unclean water and they are dying and पूरी जितनी भी नदियाँ थी, because गर्मी बढ़ती चली जा रही है, because of the global warming, the streams have dried up and many tanks have also dried. छोटे छोटी जो नदी होती हैं वो सारी सूख गई हैं. एंड वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज क्या है? विलेजेस. बहुत दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है, गर्मी में पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है. सो विलेजर्स हैव टू कैरी वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस. Now just see, again it is mentioned here. They are reading the newspaper. This is the newspaper. क्या है इसमें? Just see the headline that is mentioned here. People at the district headquarter मतलब जहाँ पे the district headquarters, suppose जैसे वाराणसी is there. वाराणसी is a district, तो आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ का सारा काम जो है वो वाराणसी district, it is like headquarter to the nearby villages. तो पातालपुरम नाम की एक जगह है, वहाँ पे वाटर सप्लाईज वंस इन 3 days. इमेजिन चिल्ड्रन, एक दिन अगर पानी नहीं मिले तो कितनी हालत ख़राब होती है. एंड यहाँ पे इट इज़ हैपनिंग इन 3 days. तो पानी नहीं पीते हैं लोग, ऑब्वियसली सोचेंगे हो पानी पियेंगे तो पता नहीं तो 2 दिन मिलेगा पीने के लिए. तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर, माई डियर चिल्ड्रन, the hospital here is overflowing with patients. लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है. And what do we say, especially in the summers में children, I am telling you just for knowledge sake,
7 liters of water intake should be daily. हाँ चिल्ड्रन, रोज 6 से 7 लीटर पानी अगर नहीं पियोगे तो योर बॉडी वुड बी ड्रेन्ड आउट ऑफ वाटर, और ये सिचुएशन नहीं लानी है, ठीक है. एंड लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विथ acute diarrhea. Diarrhea means children continuously your loose motions happen, and not only you lose motions, you feel pukish also. आप उल्टियाँ करते हैं, आप फिर वॉशरूम जाते हैं, तो ये सब पानी की कमी की वजह से. देखो आपको कभी क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, यू विल फाइंड योर मदर गिविंग यू, एक होता है ना ORS का घोल आता है, नमक चीनी का पानी होता है, पानी पियो पानी पियो, एवरीबडी विल से जितना पानी हो सकता है पियो, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी. सो दीज ऑल थिंग्स इंडिकेट वेरी क्लियरली दैट हेल्थ इश्यूज नीड्स टू बी सॉल्व्ड प्रॉपरली. You really need to take care of your health, dear children. आज पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, आज पूरी दुनिया परेशान है. किस चीज़ के लिए? हेल्थ इश्यूज़ के लिए ना. Now just see these two girls, look at their faces, poor girls, very worried. They are saying on the TV news 10 people have died from diarrhea. बोल रही है कि टीवी में देखा कि डायरिया से people are dying. तो इस दैट फ्रॉम इट, मतलब ऑब्वियसली आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना. यू आर टोटली ड्रेन्ड आउट ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी. और बॉडी में क्या है, बॉडी में यू हैव 80% ऑफ वाटर ओनली. ये ब्लड क्या है, इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द क्लीन वाटर. ब्लड को प्यूरिफाई करता है. तो आप समझो कि कंटिन्यूस ये जो वॉशरूम्स आप जाते हो, तो दिस डर्टी वाटर फ्रॉम द बॉडी इज फ्लोन आउट, फ्लश्ड आउट. So you can understand how important it is to water intake. Who knows, just hope I don't get it. अब बच्चे डर रहे हैं, है ना. उसी आफ्टरनून में क्या हुआ, my mother said not to have market. आइसक्रीम नहीं खानी है ना, गर्मी में ऐसे करना चाहिए, बाहर खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है. You should avoid the stale food. So my mother said not to have any ice drink from the market. कोई भी बर्फ वाला ड्रिंक नहीं लेना है. And one of her lectures she has said you have to be responsible for your health, Shireen. Means her mother is making the child aware कि अपने सेहत का ध्यान रखो. Shireen, her name is Shireen. And बोली मम्मी ने लेक्चर दिया ना, उस पर उसकी फ्रेंड हंस रही है, हा हा हा. मम्मी का लेक्चर बहुत कभी कभी बोरिंग हो जाता है. नाउ दिस इज अ लेडी पुलिस इज कमिंग हियर, शी इज सेइंग स्टॉप. तो द लेडी पुलिस कम्स एंड दीज टू गर्ल्स हु आर गोइंग, शी इज सेइंग रोड इज ब्लॉक्ड, चक्का जाम है, ठीक है, बिकॉज दे हैव घेराउड द MLA's रेसिडेंस. रैली हुई है, रैली होती है ना, मतलब 100-200 लोग जो हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद इस तरह की बातें करते हुए, दे जस्ट अपोज सर्टेन थिंग्स, या किसी चीज़ का विरोध करते हैं, या किसी चीज़ को के लिए जो है रोड्स पे आते हैं. तो द गर्ल्स आर आस्किंग द लेडी पुलिस, रियली, सच में, वाई, हैज़ ही डन समथिंग, क्या इन्होंने कुछ किया है. तो नाउ दे आर टॉकिंग, they seem more angry about what he hasn't done. तो द लेडी पुलिस इज सेइंग कि उन्होंने क्या किया है इस चीज़ पे नाराज़ नहीं है, उन्होंने क्या नहीं किया है इस चीज़ पे लोग बहुत नाराज़ हैं. पीपल इन दैट एरिया वेर वेरी अनॉयड विद द MLA. MLA इज मेंबर ऑफ द अभी आगे हम पढ़ेंगे हु आर MLA, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज. आप सोच रहे हो गए ये MLA तो मैम ने बता दिया, लेकिन क्या है MLA नहीं बताया, अभी वेट. And we demand that authorities, यहाँ पे people are trying to oppose. क्या oppose कर रहे हैं, क्या demand कर रहे हैं? Authorities take immediate action to bring public health situation under control. Remember children, अभी हमने पढ़ा था diarrhea. People are dying because of diarrhea. तो the people here, यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि MLA, what is the MLA doing? People are dying because of the water scarcity and no proper health arrangements have been made. सरकार क्या कर रही है?
सो नाउ द गर्ल्स आर टॉकिंग. शीरीन और उसकी फ्रेंड बातें कर रहे हैं. वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग. तो नाउ शी इज टेलिंग, दे बोथ द गर्ल्स आर इन कन्वर्सेशन कि कितना तेज बोल रहा है. आई थिंक ही इज अ लीडर. तो द अदर गर्ल इज सेइंग, अरे चुप रहो, आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. ठीक है. अब एक होता है मेंबर ऑफ द पार्टी एंड अदर वन इज मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. Who is the party member, who is the opposition member? We will be doing it in the next class, children. Till then, just keep revising. Okay, children? Thank you, children, and all the best to you.